Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। Hope you all will be fine and doing your work on regular basis because as soon as I'll resolve the problems of my Google Classroom, I'll be asking you to submit all your work in that Google Classroom. Okay? So make sure that you do all the practicals in your notebooks, but it should be done by yourself. Okay? Otherwise, if I find anything copied from each other, I'll just cancel that work and I will not be giving you the marks. For each practical, you have certain marks. Okay? And whenever you will be coming back to university, you will be performing all the practicals in groups. So today we are going to do a new practical. Actually, this is the practical in order to understand the one is the to understand what is the weaning and what different kinds of food we prepare for the children, specifically under 1 year of age, जो हम लोग 6 to 9 6 months से 1 year की बात करते हैं तो उनके लिए किस तरह के बेसिक फूड प्रिपेयर किए जाते हैं. And one is what you have to understand what is the meaning. And second objective of today's practical is actually to evaluate the cost of the product. कंप्लीट प्रोडक्ट की कॉस्ट इवैल्यूएशन करनी. अब जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे कुछ चीज बनाएंगे नेक्स्ट तो आप सबको उसकी कॉस्ट इवैल्यूएशन करनी होगी. ठीक है. So second objective is to do the cost evaluation. Although you do not have your weight measurement scale आपके पास घर में नहीं है, you do not have standards at your home. Hope you have certain measuring cups at your home. Maybe. And if you don't have, you can use a simple plain white cup जो आपके घर में आते हैं, शीशे के कप्स छोटे जो होते हैं, आप उनको यूज करके भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं और एक अंदाजन एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना कॉस्ट आपकी रेसिपी पे आया होगा. ठीक है. By taking a teaspoon of 5 gram, by taking a simple cup जो बेसिक स्मॉल कप होता है ऑफ 250 ग्राम, तो वो लेकर भी आप लोग जो है जनरल एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कॉस्ट की. बाकी जो एग्जैक्ट एस्टिमेशन है वो हम लोग जब आप आएंगे यूनिवर्सिटी में तो आप तब करेंगे उसकी. ठीक है. Today we are going to study three to four recipes of the weaning products, and after that you'll be preparing only one of them at your home, winning recipe, और उसकी कॉस्ट evaluation करनी. So let's start with the practical. Weaning is actually the transition phase from the breast milk to the family food. हम बेबी को slowly gradually जो है we transfer that baby from the milk, either from the breast milk or from the complete feeding, जो bottle feeding से हम लोग उनको family foods की तरफ लेकर आते हैं. That is actually the process of weaning. The process by which a baby slowly gets used to eating family or adult food and relies less and less on breast milk. Normally में यहाँ पे हमने जरूर मदर मिल्क के बारे में लिखा हुआ, but still आजकल जो concept जो लोग use कर, that is the bottle feeding. So actually we are trying to reduce the content of the milk taken by the baby, and we're trying to increase the other foods that we actually eat at home as an adult. We're trying to introduce those foods to the baby. ठीक है. सो मिल्क की कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाती है एंड अब जो फूड है उसकी कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे ज्यादा करनी पड़ती है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल रूटीन में एडल्ट करते हैं. तो एक इंडिविजुअल को फैमिली फूड की तरफ इंट्रोडक्शन करवाना जिस तरह हम खा रहे होते हैं, दैट इज नोन एज द वीनिंग. तो वीनिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द सॉफ्ट फूड्स. बहुत ही प्यूरिड या सॉफ्ट फूड्स की तरफ हम आते हैं, तो हमेशा वीनिंग स्टार्ट करते हैं ताकि उनके बच्चे के दांत नहीं होते, अगर होते भी है तो स्टिल स्टमक उनकी डाइजेशन की कैपेसिटी ज्यादा नहीं रखता. तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद सॉफ्ट फूड और धीरे धीरे हम लोग आते हैं फिंगर फूड्स पे, जैसे कि फिंगर फूड में फ्राइड फूड्स हो गए, जैसे कि फिंगर चिप्स हो गए, बॉइल्ड कैरेट्स होगी फिंगर फॉर्म में कटेड होगी, बॉइल्ड अदर फ्रूट्स हो गए, अदर वेजिटेबल्स होगी. ठीक है. दैट इज एक्चुअली द मीनिंग. And this process varies from culture to culture and is often regulated by the child's individual need. ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है और जरूरी नहीं कि हम बात करें कि मिल्क कंजम्पशन कम करें तो बिल्कुल ही खत्म नहीं करनी. धीरे धीरे हमने सिर्फ मिल्क की कंजम्पशन कम करवा देनी और जो सॉलिड जो सेमी सॉलिड फूड या सॉफ्ट फूड है उसकी कंजम्पशन जो है धीरे धीरे हम लोग ज्यादा करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल. ये भी नहीं कि अगर बच्चा नहीं खा रहा तो जबरदस्ती उसको खिलाना चाहिए, जो आजकल की मदर्स कर रही है
कि मेरा बच्चा वीक हो रहा है तो उसको जबरदस्ती फूड देने की कोशिश कर रही होती है। हम यहाँ पे फोर्सफुली फूड इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है फूड को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टू दी चाइल्ड। और एक फूड के साथ एक चाइल्ड की इंट्रोडक्शन जो है, फॉर एग्जांपल आज से मैं एक बच्चे को सॉफ्ट फूड देना शुरू करी हूँ, 6 मंथ्स ऑफ एज का हो गया है। कई लोग जो है 4 मंथ्स पे भी वीनिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट द बेस्ट एज टू स्टार्ट द वीनिंग द कम्प्लीमेंट्री फूड इज द 6 मंथ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं एक बच्चे को वीनिंग फूड देना शुरू करती हूँ सॉफ्ट फूड, अब वो उसका अगर 1 टीस्पून भी ले लेता है तो अपने एक्चुअली फूड उस फूड के यूज टू हो रहा होता है। इट विल टेक एटलीस्ट 4 days फॉर अ चाइल्ड टू एडजस्ट विद न्यू फूड, और 4 दिन बाद मैं एक और नया फूड इंट्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू इन द वीनिंग प्रोसेस। कई मदर्स क्या करती हैं, उसको हर कुछ फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ का हो गया तो आज से ही वो बहुत सारे फूड इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो बच्चा यूज टू नहीं होता। वन बाय वन वी हैव टू इंट्रोड्यूस द न्यू वीनिंग फूड टू द चिल्ड्रन। what is the need of weaning actually? As you know, that child is growing and he is developing at a very fast rate. The first year of life is actually the rapid year of the growth. मतलब पूरी लाइफ स्टाइल में दो हमारे पास ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं। ग्रोथ स्पर्ट्स कहते हैं रैपिड ग्रोइंग फेज को, ग्रोथ स्पर्ट, SPURT, ग्रोथ ग्रोइंग स्पर्ट्स। एक होता है हमारे पास इन्फेंसी में, इन्फेंसी कहते हैं आपके पास 0 to 1 year ऑफ एज को इन्फेंसी कहा जाता है, इन्फेंट। दूसरी जो ग्रोथ स्पर्ट आती होती है एडोलेसेंट फेज में, जब हम लोग टीनेजर की फेज में आते हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम 8 to 10 years इन गर्ल्स एंड 10 to 12 years इन बॉयज। दीज टू आर द ग्रोथ स्पर्ट्स, यानी कि यहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रही होती है। एंड इन दैट स्पेसिफिकली इन दीज टू फेजेस द चाइल्ड or the teenager needs the highest amount of the nutrients in order to develop and grow well. So it is actually the growing phase. The child develops at a very fast rate, and the milk alone cannot fulfill all the needs of the child. So that's why we have to introduce new foods with lots of nutrients in it. So today we are going to understand the recipe of few of the weaning foods that could be introduced to the child. Okay, the family, the food the family eat is often filling and bulky. ठीक है, जो भी फूड हम लोग खा रहे होते हैं फैमिली में वो बल्कि होता है। A child of weaning age needs food that is concentrated in energy and nutritious. हमें बल्कि फूड नहीं देना, हमें क्या करना है, छोटे से अमाउंट में मोर एनर्जी और ज्यादा न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना, जो बहुत ही सॉफ्ट हो, आसानी से बच्चा जो है उसको स्वेलो कर सके। ठीक है, एंड दे नीड मिक्सचर ऑफ फूड that has to be specially prepared for them. ये नहीं कि जो बड़ों के लिए बनाया है वो इसको खिला दो, no. A child at a certain age require specially prepared food, mixture of foods, and हमें ये नहीं कह कि mixture of food बहुत expensive होने चाहिए जैसे सेरेलैक आप लोग बाजार से ले आते हैं, no. Those foods can easily be prepared at home and they are not as expensive as one thinks. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है सूजी की खीर। The first recipe that we are going to learn is the suji ki kheer, semolina kheer. Okay? So I'm giving you the recipes. I'm giving the amount of the ingredients that we will be using, and you have to actually write the recipe cost also. कि आपको कम कितना पैसा लगेगा अगर इतनी हम लोग एक बच्चे के लिए जो सूजी की खीर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हाउ मच इट विल कॉस्ट। सूजी 1.5 tablespoon, milk 240 ml, that is 1 cup, शुगर 1.5 tablespoon, जितनी सूजी लेते हैं उतनी हम लोग चीनी भी लेते हैं। कार्डमम पाउडर, a pinch of cardamom powder is required. The procedure will be roast semolina in a pan until it is light brown. Then slowly and gradually add the milk. And जब आप मिल्क ऐड कर रहे होंगे तो उसको कंटिन्यूअसली स्टिर करना है ताकि लम्प्स ना बने। थोड़ा सा अमाउंट ऐड किया तो अच्छे से मिक्स किया, फिर थोड़ा सा और अमाउंट मिल्क ऐड किया, तो कंटिन्यूअसली स्लोली एंड ग्रेजुअली आप मिल्क ऐड कर रहे होते हैं और उसको स्टिर कर रहे होते हैं। जब कम्प्लीटली मिल्क आपने ऐड कर दिया तो उसमें शुगर और कार्डमम पाउडर जो है वो ऐड कर दें।
और उसको कंटिन्यूसली स्टिर करें ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी थिक हो जाए, पर ये भी नहीं कि बिल्कुल आप उसको हार्ड बना दें। इट शुड बी थिक लाइक द खीर, थिक पुडिंग होती है, कस्टर्ड होती है, उस तरह की कंसिस्टेंसी रखते हैं। और जैसे वो कंसिस्टेंसी मिल जाती है आपको, आप उसको बंद करते हैं, उसको कूल डाउन होने देते हैं। And then you will have to serve in a bowl that should be used for the children or any bowl, and present it. Presentation पे focus करना होगा। Hope the recipe is very easy and you can prepare it at home. आप में से 3 से 4 जो मैं आपको रेसिपीज दूंगी, इनमें से कोई भी एक रेसिपी आपने चुननी है और उसको बनाना है घर पे और उसकी कॉस्टिंग करनी है। नेक्स्ट इज राइस की इंग्रेडिएंट्स। राइस हाफ कप, शुगर या गुड़, गुड़ इज या ब्राउन शुगर कहते हैं या गुड़, जो बच्चों की ज्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू शुगर। हाफ कप शुगर। ड्राई फ्रूट पाउडर 1.5 टेबल स्पून। ड्राई फ्रूट आप मिल्क, सॉरी ड्राई फ्रूट में आप आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ता, ये चीजें यूज कर सकते हैं। मिल्क 1 liter can be used, and cardamom powder, a pinch of cardamom powder is used for the kids. Preparation: rinse and soak rice. Rinse very well the rice and then soak it for 30 minutes to 1 hour. ठीक है। नट्स को पहले आपने रोस्ट करना है और फिर उसको ब्लेंड करना है उसको जूसर में, और उसको पाउडर बनाना है। पाउडर में इसलिए बनाते हैं बिकॉज छोटा सा भी लग अगर बच्चे के मुंह में आ गया, उसे गले में अटक गया, तो इट विल बी डेंजरस फॉर द किड्स। So we always make the powdered form of the nuts also. And nuts are very nutritious. They are energy dense and nutrient dense. That's why we use nuts here. First of all, add all the milk to the pan. Let it boil. When the boiling comes, add cardamom and rice और उसको स्लो फ्लेम पे हमने कंटिन्यूसली स्टेर करना है। ऐड जब वो थिकन हो जाएगा काफी हद तक, तो उसमें शुगर ऐड करनी है और उसको स्टिर करना है फॉर 2 more minutes और फ्लेम को बंद कर देना है। सर्व इन द बाउल। और ड्राई फ्रूट पाउडर जो है उसको गार्निश करने के लिए हम लोगों ने यूज करना है। ओट एप्पल सेरेलैक वी कैन प्रिपेयर एट होम आल्सो। सेरेलैक इट्स नॉट ऑलवेज कि हम लोग उसे बाहर से ही लेकर आए, हमेशा हम लोग उसे घर में भी बना सकते हैं। ओट एप्पल सेरेलैक, ओट इज ऑल्सो गुड इन न्यूट्रिशन। तो ओट फ्लेक्स बाजार से मिलती हैं, हम आप चाहे तो ये रेसिपी यूज कर सकते हैं घर पे। अगर आप नहीं तो बाकी 3 रेसिपीज भी आपके पास होंगी जो आप इजिली घर पे यूज कर सकते हैं। ओट फ्लेक्स 1 कप, मिल्क 1 कप, एप्पल 1/4 कप। स्मॉल क्यूब्स में एप्पल को आप लोगों ने काट देना है, पील करके एप्पल को स्मॉल क्यूब्स में काटना है। और 1/4 कप, कप्स जो है आप लोग घर पे, आपको मैंने बता दिया एक बेसिक मेजरमेंट का कप आप घर पे ही यूज करेंगे। रोस्ट ओट ऑन लो फ्लेम, पहले इसको सिंपल लो फ्लेम पे रोस्ट कर देना है एक पैन में। ठंडा हो जाए तो उसका पाउडर बना देना है। फिर एक पैन लेना है, उसमें 1 कप मिल्क ऐड करना है। लेट इट बॉयल ऑन अ मीडियम फ्लेम, डू नॉट इंक्रीज द फ्लेम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ऐड 2 tablespoon ऑफ ग्राउंडेड ओट्स। जो आपने ओट ग्राउंड किए थे उसको अपने मिल्क के अंदर ऐड करना है। कंटिन्यूसली स्टिर करना है ताकि लम्प्स ना बने। ओट के लम्प्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, तो इसलिए कंटिन्यूस स्टिर करना जरूरी है। कुक until the consistency is thick, then ready to serve. ठीक है। सॉरी मैंने इसमें लिखा नहीं है इसके बारे में एप्पल का। एप्पल जो आपने बनाए थे, एप्पल्स आपने कट किए थे 1/4 कप स्मॉल क्यूब्स एप्पल के। तो अब आपने जिसमें आपका मिल्क बॉईल हो जाएगा, तो जब आप ग्राउंडेड ओट्स डालेंगे साथ ही आपने जो है एप्पल भी छोटे छोटे क्यूब्स जो काटे को डाल देने। कंटिन्यूसली स्टिर करना है और एप्पल को साथ साथ आपने मैश करते रहना है इन दी पैन। ठीक है। जब कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी तो आपने उसको बाउल में डाल देना है। ठीक है। एप्पल्स आपने जब आप ग्राउंडेड ओट्स डाल रहे होंगे तो उसके बाद आपने एप्पल को भी डाल देना है जो आपने क्यूब्स में कट किया होगा।
और उसको साथ साथ जो है वो उसको मैश करते जाना है। एप्पल्स बॉईल होते ही सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उनको मैश करते जाना है और ताकि कोई लम्प्स ना बने, और जो कंसिस्टेंसी ओवरऑल उसकी काफी सॉफ्ट एंड थिक हो। दिस हाउ द सेरेलैक इज मेड एट होम ऑल्सो। The fourth recipe is the vegetable khichdi, dal vegetable khichdi, which is very common among our culture. Being in Pakistani, being in Asian country, it is very common in our culture to give dal khichdi to the children. I'm adding the vegetables also here because vegetables are nutritious. They have very some different amounts of the nutrients which are good for the children. We need butter 1 teaspoon. We need zira half teaspoon. 3 to 4 curry leaves. घर पे अगर है तो चोके, अगर नहीं है तो इट्स एन ऑप्शन। वेजिटेबल आपको चाहिए हर एक चीज का 1 टेबल स्पून। पीस, पोटैटो स्लाइस्ड, beans, tomato, all these things we need in slices form. Salt to taste, we need turmeric 1/4 teaspoon. Moong dal 1 tablespoon, and it should be soaked for 30 minutes. Okay? Add butter to pressure cooker. Add jeera and curry leaves and stir it until it is brown. Add all the vegetables and dal. Okay? Stir well for 2 minutes. Add salt and turmeric. Add 2 cups of water. Cook under pressure for 2 to 3 minutes. ये सिर्फ दाल वेजिटेबल खिचड़ी है, इसमें हमने राइस ऐड नहीं किया। ठीक है, यू कैन सी दिस इज ओनली द दाल वेजिटेबल खिचड़ी। एंड इफ यू वांट टू ऐड राइस आल्सो, यू कैन ऐड राइस टू इट आल्सो। ठीक है, कई दफा हम इसमें राइस भी ऐड करते हैं। अगर आपने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है मूंग दाल लिए, तो हम लोग 1 टेबल स्पून राइस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक इफ यू वांट टू इंक्रीज द न्यू एनर्जी डेंसिटी ऑफ द खिचड़ी, you can also add rice to it. So now you have 4 recipes. Hope you understood what is the meaning food. यस मैम। और ये खुद बनानी है आप लोगों ने, चाहे वो बॉयज हैं गर्ल्स हैं, उन्होंने खुद बनानी है ये। खुद उसकी प्रेजेंटेशन भी करनी है, एक बाउल में डालेंगे और उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह होगी वो भी आपने खुद देखनी है। ठीक है मैम जी। ये बच्चे के लिए एक सर्विंग होगी जो मेजरमेंट दी हुई है। ये बच्चे के लिए एक सर्विंग भी हो सकती है। समटाइम्स बच्चा इतना ज्यादा नहीं खा सकता, तो वो इसमें से अगर 2 to 3 टीस्पून भी ले लेते हैं तो भी बहुत इनफ है स्टार्टिंग में। ठीक है, किसी घर में अगर बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, देन वेल एंड गुड। तो आप इस चीज को ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बच्चे जो होते हैं उनको फोर्सफुली नहीं खिलाते। स्टार्टिंग में वो एक थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और बाकी शायद मुंह से निकालने की कोशिश करते हैं। वन फूड रेसिपी हैज टू बी अप्लाइड फॉर कंटिन्यूअसली 4 days, ताकि वो उसके लिए यूज टू हो जाए। ठीक है, ताकि वो यूज टू हो जाए। और मैम ये 6 मंथ के बाद देने वाली रेसिपी है, तो इसमें हम नट्स ऐड करेंगे? वो तो इसलिए मैंने नट्स ऐड करवाया, लेकिन कौन से फॉर्म में? पाउडर्ड फॉर्म। अगर आप ग्राउंडेड फॉर्म। देखिए, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंडेड फॉर्म है। यहाँ पे उसको पहले हमने बिल्कुल उसको रोस्ट करने के बाद उसको ग्राउंडेड किया है। रोस्ट भी इसलिए किया है ताकि एक तो नट्स का फ्लेवर, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, यानी कि इजीली डाइजेस्टिबिलिटी हो जाती है, दे बिकम इजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा उसको रोस्ट किया पहले, उसके बाद जो है हमने उसको ग्राउंड किया है। तो वो मुंह में नहीं आएंगे, लम्प्स नहीं बनेंगे उसके, बच्चे को गले में अटक नहीं, मतलब उसकी जो इन एनी केस बच्चे को स्वेलिंग डिफिकल्टीज नहीं होगी। क्योंकि वीनिंग फूड जो होते हैं शुड बी वेरी सॉफ्ट इनफ, ताकि इजीली बच्चा डाइजेस्ट कर पाए। हमने क्यों राइस, सेमोलिना या मूंग की दाल ली? बिकॉज दीज आर दी फर्स्ट ऑफ ऑल द फूड्स विच आर इजी टू डाइजेस्ट। ये बच्चे इजीली, इनका स्टमक इसको डाइजेस्ट कर पाता है। हमने हमने चने की दाल क्यों नहीं ली, हमने कोई और दाल क्यों नहीं ली?
ठीक है, हमने यहाँ पे वीट क्यों नहीं लिया? बिकॉज एट द स्टार्टिंग फेज वीट इज ऑल्सो नॉट इजी डाइजेस्टेबल बाय द चिल्ड्रन। सबसे पहले जो है वो चावल जो होते हैं वो सबसे उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीजें हम लोग यूज करें जिनकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। एक वीनिंग फूड और भी हमारे पास बड़ा आसान आसान सा है। एक तो है एप्पल प्यूरी, दूसरे हमारे पास है बनाना को मैश करना, बॉइल्ड पोटैटोज देना बच्चों को। तो बहुत सारी और भी विनिंग फूड्स है, लेकिन ये वो विनिंग फूड्स है जिनकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज्यादा है, जिनकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे हम मोर देन वन फूड को कंबाइन कर रहे हैं। Being a nutritionist, we have to focus on the children also. We have to combine more than one food here. Clear? यस मैम। आपने पहले विनिंग फूड्स पढ़े? नो मैम। Hope so now it is easily understood. मजर ये Any दरवाजा बंद करो। problem? बना लेंगे सब। थोड़ा सा कॉस्टिंग में डिफिकल्टी होगी बिकॉज मेजरमेंट्स हैं इसकी। आपको पहले 1 kg का या 1 लीटर ऑफ मिल्क का, ठीक है, प्राइसेस आपको मालूम करने होंगे। उसके बाद उनके छोटे छोटे अमाउंट आप ले रहे हैं तो अंदाजा लगाएंगे कि एक 1 kg तो 1 kg मीन्स दैट वी हैव 1000 ग्राम्स। अगर हम 1 टीस्पून ले रहे हैं या 1 टेबल स्पून ले रहे हैं, आपको उनकी मेजरमेंट्स में बता चुकी हूँ, तो उसका कितना प्राइस होगा। तो थोड़ा सा आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, बट फिर थोड़ा सा काम करेंगे यहाँ पे तो आके प्रैक्टिकल में इजीली आप इस पे अप्लाई कर पाएंगे और सिर्फ आपकी वैल्यूएशन होंगी वहाँ पे। मैम, जी बेटा। ये जो हमने जो इंग्रेडिएंट्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लेने, जैसे कार्डमम पाउडर 1 पिंच, तो वो इसकी आप कॉस्ट निग्लेक्ट कर एवेल्यूएशन? रहे हैं, उसे आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके मैम। वैसे अगर आप होती यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो हम लोग इकट्ठा ही में कार्डमम पाउडर बनाते हैं उसमें। ठीक है, आपको पता है कार्डमम बहुत कॉस्टली आती है। ठीक है, हम इकट्ठा ही इसका कॉस्ट हम बनाते हैं इसका कि हमने इतना पाउडर बनाया है। ठीक है, उसमें से जब आप 1 पिंच ले रही है तो आपको फिर उसको ध्यान देना पड़ता है कि 1 पिंच या दैट मीन्स 1/4 टीस्पून। तो 1/4 टीस्पून का आपको कॉस्ट निकालना पड़ता है फिर वहां पे, तो जितना मर्जी आता है। लेकिन वहां पे क्योंकि हम इकट्ठा पाउडर बनाते हैं तो वो इजी हो जाता है थोड़ा सा मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप उसको निगलेक्ट कर दें, बाकी जितने आपने इंग्रीडियंट्स ऐड कर ले उनका अमाउंट जरूर निकालें। ओके मैम। मैम हमने कॉस्टिंग और प्राइसिंग दोनों करनी है या सिर्फ कॉस्टिंग करनी है? अच्छा, कॉस्टिंग और प्राइसिंग में क्या फर्क है? मैम एक वो मतलब हमने इंग्रेडिएंट्स की देखी ना कि कॉस्ट कितनी है और दूसरी फिर रेसिपी की। अच्छा, जब तक हम लोग सेपरेट इंग्रेडिएंट की कॉस्टिंग नहीं देखेंगे तो हम पूरी रेसिपी की इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? जी ठीक है। पहले अपने इंग्रेडिएंट की सिंगल आपने देखनी है कि इंग्रेडिएंट की, उसके बाद उनको एड अप करना है और रेसिपी की फिर कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ लेबर कॉस्ट ऐड नहीं करनी। जो आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, यानी कि जो आप ग्राउंड करने के लिए यूज करते हैं हम लोगों ने, वो चीजें ऐड नहीं करनी। सिंपल आपने एक रेसिपी कॉस्ट निकालनी, इंग्रेडिएंट पहले निकाल के फिर उसके बाद रेसिपी कॉस्ट। और फिर खुद टेस्ट भी करना है। जब आप बच्चों को देते हैं फूड, इस कंसिस्टेंसी का आप खुद भी टेस्ट करके देखें कि आप एडिबल है कि नहीं है। तो जो भी आप कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि उनकी पिक्चर्स अपने पास रखें, अपने बनाते हुए पिक्चर्स लेनी है। प्लीज कोशिश करें खुद ही बनाएं, बिकॉज आपने जब यहाँ पे आना यूनिवर्सिटी में तो ग्रुप वाइज सारे परफॉर्म करने हैं प्रैक्टिकल। जी जैनब, आप कुछ पूछ रही थी? मैम नोटबुक पे ये जो चारों रेसिपीज लिखनी है। जी, नोटबुक पे आपने चारों रेसिपीज, ठीक है। जैसी रिकॉर्डिंग मेरी ईमेल में आ जाएगी तो मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग्स जो है अपलोड कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से जो है वो रेसिपीज इस हफ्ते में बना के अपनी पिक्चर्स वगैरह लेके रखें।
जैसे ही मेरा गूगल क्लासरूम वर्किंग कंडीशन में आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोगों ने सारे अपलोड भी करना है। तो मेक श्योर आपके प्रैक्टिकल नोटबुक प्रिपेयर्ड हो इस वीक। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम रेसिपी कॉस्ट भी लिखनी है प्रैक्टिकल नोटबुक पे इंग्रेडिएंट्स की। ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट कॉस्ट, उसको फिर एड अप करके रेसिपी कॉस्ट भी लिखनी है।